Hello everyone. Today we will continue our first lesson of history, that is the rise of British rule in India. We already finished about more than 2.5 pages of this lesson. We discussed about the way French people, Portuguese people, Dutch people and Britishers entered in India, and how Britishers finally became able to complete their became able to complete their became able to expand their rules in India. Okay, and the first war, that is finally they started a war with Sirajuddaulah to capture their complete province of Bengal, right? सो नवाब्स के साथ किस तरह से उन्होंने युद्ध करना शुरू किया एंड ऑल, वो लोग अपना ब्रिटिशर्स अपने आप को फाइनली एक्सपेंड करने लगे इंडिया में. So we studied yesterday, in my last video of SS, we studied about Battle of Plassey and Battle of Buxar. I already uploaded 2 videos related to this lesson, and this is the third video for this lesson. Now, expansion of company's rule. Battle of Plassey और Battle of Buxar के बाद finally बंगाल provinces, काफ़ी parts of Bengal, बिहार एंड उड़ीसा ब्रिटिशर्स के अंडर हो चुके थे, एंड ब्रिटिशर्स हैड गॉट दीवानी राइट टू कंट्रोल एंड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पीपल. सो नाउ फाइनली दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग फ्रॉम बंगाल साइड, दैट इज़ ईस्ट साइड से वो फाइनली मूव होने लगे पूरे इंडिया को कैप्चर करने के लिए. द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड अ रेगुलेटरी एक्ट इन 1773 AD, according to which the governor of Bengal was made the governor general, and all the trade and political activities of the company were brought under his direct control. Now up till here if we discuss, तो बंगाल में से नवाब और राजा महाराजास का टाइम ख़त्म हो चुका था, and we already studied in Battle of Plassey. Robert Clive had done attack on Sirajuddaullah's kingdom, right? Then further, now बंगाल में जो गवर्नर बना था, फाइनली ब्रिटिशर्स ने ये डिक्लेयर किया कि वो गवर्नर ही गवर्नर जनरल डिक्लेयर होगा, एंड ही विल कंट्रोल ऑल द पॉलिटिकल एंड बिजनेस एक्टिविटीज़. ओके, किस एरिया में किसको लीडर बनाना है और किस एरिया में से कैसे बिजनेस करना है, ये सारी एक्टिविटीज़ भी वही गवर्नर जनरल कंट्रोल करेगा. देन द मुंबई मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल वर ब्रॉट अंडर हिम, दैट इज़ जो मेन गवर्नर जनरल कौन सा बना, दैट इज़ गवर्नर ऑफ बंगाल. तो गवर्नर ऑफ बंगाल का जो गवर्नर था, दैट लीडर था, ही फाइनली बिकेम इवन लीडर ऑफ governor of Mumbai and Madras. Presently India's governor is Mr. Kovind, right? Kovind, Kovind. Okay, so like this, उस वक्त भी गवर्नर जनरल थे, और वो सब गवर्नर जनरल ही टर्न वाइज टर्न इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे. देन thus Warren Hastings became the first Governor General of India. You can underline the line, you can note down this line. Who was the first Governor General? That is Warren Hastings. During his tenure मतलब time, उसके समय में the first Maratha War and the second Mysore War with Hyder Ali of Mysore was waged. Waged मतलब took place. Okay? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल के टाइम में 2 wars took place, that is one Maratha war and second war was Mysore war, and that war took place with Hyder Ali. Then the problem for the East India Company increased because it had to face both the powers simultaneously, that is side by side,
ऐसा नहीं था कि फर्स्ट दे फॉट विद मराठाज, दे क्लियर्ड अप मराठाज इशू एंड देन दे फॉट विद मैसूर किंग. दे द टाइम इट बिकेम कि दोनों ही तरफ वॉर साइड बाय साइड चल रहे थे, एंड दिस क्रिएट सो मच this creates so much weakness in Britishers. Now, after these two wars, Cornwallis took over a Governor General after Warren Hastings. So, Cornwallis was second Governor General appointed in India after Warren Hastings. During the tenure of Cornwallis, the Third Mysore War took place with Tipu Sultan, famously known as Tiger of Mysore. ऑलरेडी वॉरेन हास्टिंग के टाइम पर 2 वॉर तो हो चुके थे. नाउ फाइनली थर्ड वॉर जो हुआ वो कॉर्नवालिस के टाइम पर हुआ, एंड दैट ऑल्सो विद टीपू सुल्तान. उस वक्त टाइगर ऑफ मैसूर जो थे वो टीपू सुल्तान थे. ओके, देन द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड विद द मराठाज एंड द निज़ाम टू डिफीट द टीपू सुल्तान. कंपनी ने फाइनली, दैट इज़ ब्रिटिशर्स फाइनली जॉइंट हैंड विद मराठास एंड निज़ाम. ये 2 लोगों से उन्होंने हैंड जॉइन किए सिर्फ टीपू सुल्तान को हराने के लिए. देन टीपू सुल्तान कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्स एंड हैड एक्सेप्टेड द ट्रीटी. सो टीपू सुल्तान वॉज नॉट एबल टू फेस these 3 combined powers, that is Britishers, then Marathas and Nizams. तो जब तीनों ने मिलकर अटैक किया, then finally Tipu Sultan got defeat in the battle and Mysore was under British control. Then after Cornwallis, Sir John Shore became the Governor General. So Sir John Shore was the third one. Okay, sorry. Sir John Shore was the third Governor General. Due to some rigid policies adopted by him, the East India Company's fame declined and Marathas became stronger. So Governor General की हर एक का काम करने का तरीका अपना अपना होता है. तो यहाँ पर विलियम हास्टिंग और कॉर्नवालिस अच्छे से रूल करके गए, बट व्हेन द थर्ड गवर्नर जनरल गॉट अपॉइंटेड, दैट इज़ सर जॉन शोर, तो व्हेन दिस पर्सन गॉट अपॉइंटेड, हिज रूल्स वर वी कैन टेल लिटिल स्ट्रिक्ट देन बिफोर. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रेप्यूटेशन डाउन हो गई एंड मराठास फाइनली केम इन पावर. मराठास बिकेम स्ट्रोंगर. सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली who came after John Shore. John Shore के बाद जनरल वेलेस्ली आए. सो वेलेस्ली इज़ डिक्लेयर्ड एज 4th गवर्नर जनरल. ओके, तो व्हेन वेलेस्ली केम इन इंडिया टू रूल, got the responsibility of making the company supreme in India. सो वेलेस्ली को एक टारगेट दिया गया था कि सर जॉन शोर की वजह से जो कंपनी की इमेज डिक्लाइन हुई है, सी दैट यू मेक कंपनीज इमेज गुड अगेन देन मराठास. के मराठास से ब्रिटिशर्स की जो इमेज है वो अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखनी चाहिए. सो वेलेस्ली वॉज हैविंग दिस एम विद हिम व्हेन ही वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, sorry, of provinces which they have captured. Okay, then for this Wellesley introduced the subsidiary alliance system. The condition of the system and the states adopted under this are as follows. So finally Wellesley ने गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने एक सिस्टम अडॉप्ट किया एंड दैट सिस्टम वॉज सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. अब सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी और क्या नहीं, दैट इज़ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर. Here is the page. I will just put pause of 1 minute. Please read this so that you can understand the whole topic well. Okay, these are the terms and conditions of subsidiary alliance and you have to study this well for your answers of questions. Please.
Okay, I hope you people read it on your own. Okay, let me also read now. See, the army. Now, what was terms and conditions of subsidiary alliance? That is, the army trained by East India Company government will be provided to the state that accept the system. Okay, before I go with these terms and conditions, let us recall the working and serial wise all governor general. Okay, very first we discussed about Warren Hastings, right? Let us recall it. Very first we discuss about वॉरेन हास्टिंग. अब वॉरेन हास्टिंग के टाइम पर क्या हुआ था? वॉरेन हास्टिंग के टाइम पर 2 वॉर्स हुए थे. यस और नो? विच 2 वॉर्स वर डन अंडर वॉरेन हास्टिंग? दैट इज़ one war, first war with Marathas, right? And the second war was and the second मैसूर वॉर. मतलब सेकेंड वॉर जो हुआ वो मैसूर का भी सेकेंड वॉर था. ओके, सेकेंड मैसूर वॉर. नाउ वॉरेन हास्टिंग के टाइम पर ये 2 इंसिडेंट्स हुए. आफ्टर दिस इंसिडेंट्स who another was appointed? This was the first one. Second got appointed is Cornwallis. Cornwallis. Now कॉर्नवालिस ने क्या किया था? कॉर्नवालिस के टाइम पर थर्ड मैसूर वॉर वॉज डिक्लेयर्ड. एंड किसके साथ डिक्लेयर हुआ था? विद टीपू सुल्तान. एंड हु इज़ टीपू सुल्तान? दैट इज़ टाइगर ऑफ मैसूर, राइट? उसको एक टैग दिया गया था, दैट इज़ टाइगर ऑफ मैसूर. Okay, now he was not getting defeated. So what this Cornwallis had done? Cornwallis joined hands with Marathas plus Nizam, right? When British East India Company plus Marathas plus Nizam, when these 3 got together and attacked on Mysore in third war, finally Tipu got defeated, right? Tipu got defeated and finally Mysore was under British East India Company. Okay, so वॉरेन हास्टिंग के टाइम पर क्या हुआ एंड कॉर्नवालिस के टाइम पर क्या हुआ? आफ्टर कॉर्नवालिस who was appointed? The third one was Sir John Shore. Now Sir John Shore के जो पॉलिसीज़ थे, उनके पॉलिसीज़ जो थे वो थोड़े रिजिड थे. सर जॉन शोर की रिजिड पॉलिसीज़, राइट? रिजिड पॉलिसीज़. Now because of rigid policies, what happened? Britishers weakens and Marathas stronger, right? That is, उनकी रिजिड पॉलिसी की वजह से ब्रिटिशर्स वीक हो गए और मराठास स्ट्रॉन्ग हो गए. नाउ ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स की इमेज दोबारा लाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया? दे अपॉइंटेड द 4th गवर्नर जनरल. विच वॉज द 4th गवर्नर जनरल? दैट इज़ वेलेस्ली. WELLESLEY, वेलेस्ली. ओके, तो वेलेस्ली ने क्या किया? वेलेस्ली अपॉइंटेड विद वन स्कीम, दैट इज़ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम. सो दिस सिस्टम वॉज अलॉटेड बाय वेलेस्ली, क्योंकि वेलेस्ली के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट ही हैज़ टू स्ट्रॉन्ग द इमेज ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया. ओके, so these are the working of 4
These are the working of 4 governor generals: Warren Hastings, Cornwallis, then Sir John Shore and Wellesley. Okay, now अब हमें देखना है कि सब्सिडरी अलायंस में क्या है. सी सब्सिडरी अलायंस में मतलब इन शॉर्ट अगर इफ़ आई स्पीक इन वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड इन हिंदी, तो इट वॉज लाइक के एक एरिया में इंडियन विल रूल इंडियन ही करेगा. दैट एरिया विल बी रूल्ड विद इंडियन ओनली. बट जो कंट्रोल होगा, कंट्रोल विल बी कम्प्लीटली ऑफ ब्रिटिशर्स. कंट्रोल विल बी कम्प्लीटली बाय ब्रिटिशर्स ही होगा. ओके, अब ब्रिटिशर्स कैसे? बिकॉज ब्रिटिशर्स विल गिव वर्क टू दिस इंडियन. ब्रिटिशर्स विल प्रोवाइड आर्मी टू दिस एरिया. ओके, और आर्मी जो है वो इस लीडर की बात नहीं सुनेगी. आर्मी हमेशा ब्रिटिशर्स के ऑर्डर को ही फॉलो करेगी. ओके, मतलब क्या? इन शॉर्ट, ये दिस लीडर विच वॉज इंडियन ओनली, वो सिर्फ नाम का लीडर था. ओनली फॉर नेम सेक ही वॉज अपॉइंटेड एज लीडर. अदरवाइज पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर ही करेगा. ओके, एंड अनदर थिंग इज़ ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना कोई कुछ नहीं करेगा ये सारे एरियाज़ में. सो इंडियंस को क्या लगा? व्हाट इंडियंस फील? इंडियन थॉट अपॉइंटिंग इंडियन एज अ लीडर ऑफ आवर एरिया विल बी गुड फॉर अस. सो दे फेल्ट दिस सब्सिडरी अलायंस वेरी गुड. ओके, हु फेल्ट? इंडियंस. इंडियंस को लगा कि सब्सिडरी अलायंस अच्छा है. बट लेटर ऑन दे फेल्ट दैट सब्सिडरी अलायंस जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ स्वीट पॉइजन. ओके, क्योंकि उनको धीरे धीरे समझ में आया कि सब्सिडरी अलायंस एक्चुअल में है क्या. ओके, वेलेस्ली ने बहुत ही अच्छा ट्रिक प्ले किया था कि वेलेस्ली started with this system and he was very much good behave person with Indians and Indians got come in their talk. उसके वर्डिंग्स में आ गए इंडियंस और इंडियंस ने ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम उनको अच्छा लगा. ओके, एंड फाइनली दे स्टार्टेड वर्किंग अकॉर्डिंग टू इट कि ओके वेलेस्ली अच्छा बंदा है, वो अच्छा कर रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे. तो वी विल अपॉइंट वन लीडर, तो हमें इंडिया का ही लीडर मिलेगा. ओके, तो इस तरह से दे पीपल स्टार्टेड अपॉइंटिंग अडॉप्टिंग सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. बट लेटर ऑन ऑल इंडियंस केम टू नो अबाउट कि ये जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है ये इंडियंस के फ़ायदे के लिए बिल्कुल नहीं है. इट इज़ कम्प्लीटली स्वीट पॉइजन. ये एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे अपना असर कर रहा है. अंडरस्टूड व्हाट वाज सब्सिडरी अलायंस? लेट अस रीड दिस. The army trained by the East India Company government will be provided to the state that accept the system. That is, जो भी स्टेट सिस्टम एक्सेप्ट करेगी उसको ब्रिटिशर्स आर्मी देंगे. In return, the state accepting the system will be provided for the army or give away provinces with equivalent income to the British. So that is what अब ब्रिटिशर्स आर्मी अपॉइंट करेगी, लेकिन वो आर्मी के लिए जो उनका जो उससे लाइक सपोज इनकम सोर्स होगा आर्मी का, दैट इनकम विल बी गिवन बाय स्टेट. वो इनकम स्टेट को देना पड़ेगा. जो भी स्टेट ये सिस्टम अडॉप्ट करेगा दे विल गेट आर्मी फ्रॉम ब्रिटिशर्स. बट आर्मी को सैलरी ब्रिटिशर्स नहीं देंगे, आर्मी को सैलरी वो एरिया देगा. ओके, देन विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन ट्रीटी विद अदर स्टेट. नाउ दिस वॉज द थर्ड रूल ऑफ सब्सिडरी अलायंस के ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना स्टेट, दैट इज़ भले वो इंडिया का लीडर हो, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के परमिशन के बिना
किसी भी दूसरे एरिया के साथ कोई भी डील साइन नहीं करेगा। ट्रीटी वी कैन कंसीडर डील, ओके। तो कोई भी ट्रीटी साइन नहीं करेगा विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली। One Englishman will be appointed along with Indian Nawabs and all, so that English representative ब्रिटिशर्स के मैसेज इंडियंस को और इंडियंस के मैसेज ब्रिटिशर्स को पास ऑन करेगा। क्यों? बिकॉज they were not, मतलब Indians were illiterate at that time, they were not knowing so deep English the way Britishers were speaking, so English representative was also important, but वो representative भी Britishers का ही अपॉइंट किया हुआ था। Other foreigners not to be employed in the state, यहाँ पर foreigners मतलब not from other country, foreigners means not from other country, foreigners means like this is one area which is under subsidiary alliance system, okay। तो इस सिस्टम के साथ में दूसरा एरिया है, तो दूसरे एरिया का कोई भी पर्सन इस स्टेट में आकर काम नहीं करेगा, ओके। वो अपने ही एरिया में काम करेगा और यहाँ के लोग अपने ही एरिया में काम करेंगे। अंडरस्टूड दिस मच? एंड ये एरिया दूसरी एरिया के साथ कोई भी डील साइन नहीं करेगा, किसी भी तरह से लिंकअप नहीं होगा विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स, ओके। देन नाउ विच स्टेट्स हैव एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम? नेम्स आर गिवन हेयर, ओके। देन दिस सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजनिंग, ओके। ये सिस्टम अभी काफ़ी लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था, राइट। अब ये सिस्टम किस तरह से चल रहा था? दिस सिस्टम वॉज लाइक अ स्वीट पॉइजनिंग। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम वेलेस्ली एनेक्स्ड मैनी प्रोविंसेस, वेलेस्ली ने काफ़ी प्रोविंसेस अपने कब्जे में कर लिए। एंड एक्सपेंडेड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का अच्छा रूल उसने एक्सपेंड किया। गवर्नर जनरल वेलेस्ली आस्क्ड टीपू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम which he refused। तो टीपू सुल्तान को नो डाउट यहाँ पर टीपू सुल्तान को वो डील साइन करनी पड़ी थी जब तीन पावर इकट्ठे होकर टीपू सुल्तान के सामने आए थे। सो ही वॉज एग्री टू साइन द डील विद कॉर्नवालिस, बट सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम टीपू सुल्तान वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, बट वेलेस्ली फोर्स्ड हिम टू साइन दिस डील। For declining the subsidiary alliance, the company with support of Nizam attacked on Mysore in 1799. During the Fourth Mysore War, Tipu lost his life while fighting against the British. So Tipu Sultan have faced very bravely to Britishers, and third and fourth war of Britishers for Mysore was done against Tipu Sultan. Tipu Sultan was not in favor of Britishers at all with the subsidiary alliance system, but because Britishers attacked on Mysore again in 1799 with the help of Nizam, finally Tipu Sultan lost his life and Britishers captured Mysore after that, okay। So what we studied in this video is about working of 4 governor generals, that is which governor general will work, that is first is Warren Hastings, second Cornwallis, third Sir John Shore and fourth Wellesley। वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। सो व्हाट इज इन सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, दैट ऑल्सो वी स्टडीड इन दिस video. I hope you understood it. Please go through this video very seriously, because which topics I explained you even in my last video and this video is quite important for your 9th standard exams. Okay everyone, we'll continue our next part of lesson in our next video. Bye bye, take care and study well.